So, good morning, dear students. So, in the last class, we have discussed few numericals with the section B student, but the attendance was very less. So, now I am going to repeat this, and this is new for the section A student. So, let's discuss the two problem which is based on theories of failure. And theories of failure, we all know that in our syllabus we have the five theories of failures, and as you know that all the theories of failure and their end expression which we are going to be used in the numericals and how the numericals comes. And before going to be in depth in failure or failure, value theories of failure, we must know how to find the principal stresses, and we all know the relations of the principal stress, which we already studied in the unit 1. So this is the some you must be remember every time before going to be this unit. So dear student, this is a problem statement, is that the according to theories of failure, the maximum shear stress theory means second वाली, and उसका नाम और था क्या, ट्रेस्का theory. So determine the diameter of a bolt which is subjected to an axial pull. So, like this, suppose you have a bolt like this, and ये एक bolt है, and this is subjected to the axial pull, means this is axial pull, ऐसा ऐसा लगा हुआ है. This is subjected to the axial pull of the magnitude is given, that is 10 kilonewton, and a transverse shear force of 5 किलो किलो न्यूटन. सो ट्रांसफर शेयर फोर्स है, मान लो यहाँ लगा हुआ है ऐसा, इधर और इधर इस डायरेक्शन में, ये देखो लो, दिस इज मैग्नीट्यूड इज द 5 किलो वॉट, नहीं बेटा, 5 किलो न्यूटन. ठीक है, 5 किलो न्यूटन. एंड one thing is also given, the yield strength of the material is given when the material is in tension. That is the means क्या है, sigma y is given is 225 Newton per mm square. And also the factor of safety is FOS is given, that is a 3. And Poisson's ratio is given, but I think this won't be used in this numerical because we have they asking the find the diameter by using the shear stress theory, but in shear stress theory we not need this Poisson's ratio. So Poisson's ratio is also given, is that is the point 3. So my dear student, we in the last numerical we all know that if you have the factor of safety and yield point strength, so we have to be change this yield point strength in the working strength of the material. So we know that working strength of the material is equal to yield point strength upon factor of safety. So by using this simple formula, we can get that working strength of that material. Once we get the working strength of the material, so what happened? That material, that sigma y will be replaced by sigma w in the formula. So these things you might be remember all the things, so I just repeat for you. So let's see, questions telling like this, bolt like this, it is subjected to a axial loading 10 kilonewton, and there is a transverse loading is 5 kilonewton. So that axial loading will give you the normal stress, and transverse will give you shear stress. So let's first find the shear stress, normal stress, then shear stress. So for getting the normal stress, so sigma y is equal to 10, this is a 10 kilonewton is given, so 10 into 10 raised power 3 kilonewton, convert into the newton, 10 raised power 3. And this is the formula of area. We are knowing that um, stress is equal to force upon area. So this is the normal force which is acting over here, and this is a cross sectional area of the bolt, pi by 4 d square, because बोल्ट जो होता है राउंड शेप का होता है और आपको वही डायमीटर निकालना है. सो पाई बाई 4 डी की पावर 4. अब इसको हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दिया,
Now it's become like this. Then why the stress acting in x direction वो जीरो है, नहीं दिया है तो जीरो. देन शेयर जो ये टाउ लग रहा है, दैट विच टाउ इज एक्टिंग ऑन ट्रांसवर्स प्लेन, दिस वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ this 5 kilonewton divided by the cross sectional area of the bolt, that is the cross sectional area. So we can find that 5 into 10 to the power 3 pi by 4 d का square. Just simplify this relation, it's become 20 10 to the power 3 pi d square. So now we have sigma y and sigma y and sigma xy. Okay, one more thing I would like to share with you. So this sigma y is the normal state which is acting in the y direction, और ये वाला जो sigma y इसको बेटर है कि हम नेक्स्ट टाइम से इसको बोलेंगे sigma yp, yield point distance. तो हम इसको बोल देंगे sigma yp क्योंकि कंफ्यूजन ना हो. Yield point distance, this is the 225, this is the yield point distance जो क्वेश्चन में दिया है. This is what which we have calculated by using this normal stress and this and that one transfer stress. So ये सारा चीज़ है. चलिए अब आगे चलते हैं. So अब आपके पास आ गया sigma y, the normal stress acting toward the by direction on that bolt, और आपके पास tau जो भी चीज़ acting on the xy plane. Okay, so now let's simple use that formula, which is you all know that sigma, what the formula is that sigma 1 to sigma y plus sigma x by 2 plus minus under root of sigma y minus sigma x by 2 का होल स्क्वायर sigma x y. ये सिंपल एक फॉर्मूला है. इस फॉर्मूला में सारी वैल्यू रख देंगे जो हमने निकाली है sigma 1 एंड sigma 2 की इन टर्म ऑफ डी. सो देखिए अब यहाँ क्या रख लिया, ये 2 से 40 था, यहाँ इसकी जगह देखो सिग्मा वाई या 40 था, 40 ये 40 से 2 से कैंसिल हो गया 20 हो गया, तो ये 20 इंटू 10 पावर 3 इंटू पाई डी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, और यहाँ भी वही होने वाला क्योंकि सिग्मा एक्स तो जीरो है यहाँ भी और यहाँ भी. देन द सेम थिंग विल हैपन हियर एंड देन इट्स आल्सो 20 इंटू 10 पावर 3 पाई डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई क्या है 20 इंटू 10 पावर 3 का होल स्क्वायर से. सो ये ऐसा हो जाएगा. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. इसको देखो सिंपली अपन सॉल्व कर सकते हैं. क्या करोगे, नीचे वाला पूरा बाहर निकाल लो, ये बाहर निकाल लो, 20 बचेगा, उसको सॉल्व करोगे. इट्स बिकम 28.28 इंटू 10 पावर 3 पाई डी स्क्वायर. अब आप निकालोगे, क्या निकाल सकते हैं जो हमको चाहिए. क्या चाहिए हमको, चाहिए सिग्मा वन एंड टू. सिग्मा 1 2 क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस. So once you take the positive sign between these terms, so you will get that sigma 1, and once you get that negative sign you will get the sigma 2. आपको मिल गया 48.28 इंटू 10 पावर 3 पाई डी स्क्वायर माइनस 8.28 इंटू 10 पावर 3 पाई डी स्क्वायर. दिस इज द सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2. अब सिंपल आपको जो क्वेश्चन में कोई भी थ्योरीज ऑफ फेल्यूर दिया हो, इस बार तो पूछा है कि यू अप्लाई द मैक्सिमम shear stress theory. So what the relation with the of the maximum shear stress theory for the principal stress, that is sigma 1 minus sigma 2 equal to sigma yp. ये वाला ये देखो. So we have, हमारे पास क्या है, ये सिग्मा yp था ही. ये देखो इसको मैं yp कर देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. सिग्मा वाई यील्ड पॉइंट डिस्टेंस जो क्वेश्चन में दिया है वो कितना है, 225 न्यूटन mm स्क्वायर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3. सो वी already discussed, whenever the factor of safety is given in the question, so you have to be use this. So your yield point stress will be now called as a working stress. और उसको कैसे वर्किंग स्ट्रेस निकालते हैं, जस्ट यील्ड पॉइंट स्ट्रेस को से डिवाइड कर दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से. सो नाउ द योर सिग्मा डब्ल्यू इज 75 न्यूटन mm स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला है एस. So according to maximum shear stress theory, we all know that relation sigma 1 minus sigma 2 is equal to now sigma yp होता था, जिसको आप रिप्लेस कर देगा sigma w. So आप इसकी वैल्यू रख दीजिएगा. ये देखो यहाँ माइनस है और इस वाले में भी माइनस है. ये देखो यहाँ माइनस है तो ये बिकम माइनस माइनस प्लस हो गया है.
और इसको सॉल्व किया तो आपको मिल गया वैल्यू ऑफ डी। इसको घर में जाके प्लीज़ सॉल्व करके देख लेना, मैं भी भेज दूंगा तुम लोगों को, देख देख के करो पर करो अपने हाथ से कैलकुलेटर, नहीं तो पता चला कैलकुलेटर यूज करना भूल गए। चलो नेक्स्ट और एक छोटा सा भी एग्जाम्पल है, ये वैसे ही है पर इसमें 3 थेरीज लगाई है, तो ये न्यूमेरिकल ऐसे बड़े से न्यूमेरिकल आ सकते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में। सो आप you keep practicing of that. So let's see the discuss this one also. So a bolt is under axial pull of 24 kilonewton together with a transverse shear force of 5 kilonewton. Calculate the diameter of the bolt. क्वेश्चन सेम है, अब इसमें ज़्यादा तुमको बताने की मेरे को ज़रूरत है नहीं, वैसे ही है, आप देख लो। ये मान लो कि एक बोल्ट है ना, ये वाला बोल्ट है और इसमें एक्सियल पुल है लाइक दिस। ठीक है, एक्सियल पुल क्या है पहला वाला, आई थिंक दैट इज द 24। अब पहले जो 10 था वो 24 हो गया इधर, बस इतना सा अंतर है, और ट्रांसफर अभी भी 5 ही है। सो अब क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर यू हैव टू बी अडॉप्ट, और ये है सिग्मा वाई पी। सिग्मा वाई पी इज गिवन, कितना दिया है, so we have the sigma yp, that is the 250 and factor of safety 2.5, and just divide the sigma yp 2 by factor of safety and just you will get the sigma w. Sigma w is the working stress and that is 100 megapascal. So let's move. So we will be use the same procedure. Sigma y is equal to, we can find with the relation, simple relation f upon a, where f is equal to 24 into 10 raised power 3 and d is equal to this pi by 4 d ka square. So in this relation become 96 into 10, 90 10 96 in 10 into 10 raised power 3 pi d square. Similarly, the tau xy we can find out by given the transverse force and just divide by the cross sectional area of the bolt. So you will get that this relation 20 10 raised power 3 pi d square. And using this relation again, the principal stress 1 to sigma y plus sigma x by 2 plus minus under root sigma y minus sigma x by 2 का whole square plus tau xy. So just put the all the related respective value of sigma y and sigma x and tau xy. Sigma x is 0 again here, so it's that 40 96 become here. It's you just cancel out by the this become 48 into 10 power 3 pi d square and plus minus under root 48 to this. And when you solve all these things, so my dear students, definitely जैसे सॉल्व किया था you will get the sigma 1 and sigma 2. So as sigma 1 is 97.03 10 to the power 3 pi d square and sigma 2, okay, this must be sigma 2, I have to be correct, this must be sigma 2. So sigma 2 minus 1.03 into 10 raised power 3 pi d square. अब आपके पास बिल्कुल सारी तैयारी हो चुकी है, यू हैव द सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इन टर्म ऑफ डी। अब आपको जो थ्योरी ऑफ फेल्यूर ऑफ क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू दिस आप अप्लाई करते जाओ। पहली थ्योरी ऑफ फेल्यूर है कौन सी, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो आपको पता है द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी स्टेट दैट द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मस्ट बी लेस और इक्वल टू किसके, यील्ड पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, अदरवाइज मटेरियल विल फेल। ये इसका स्टेटमेंट है फॉर द which material, ductile material. If material is brittle, then what happen, the maximum principal stress must be less or equal to the ultimate strength of the material for the brittle material. So ये आपको याद होना चाहिए। So now just simple use the relation. So 90, the first principal stress is 97.03 into 10 to the power 3 pi d square 100, and we can calculate the value of d from here. So that is the 17.57 mm. According to the maximum shear stress theory, अब आपको याद होना चाहिए मैक्सिमम shear stress को सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 सिग्मा W।
एंड आप दोनों की वैल्यू रख दीजिए। ये माइनस है, यहाँ माइनस भी था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। एंड आफ्टर सॉल्विंग, और ये क्यूब कैसे हो गया, इट मस्ट बी स्क्वायर, देयर इज अ मिस्टेक, दिस इज द स्क्वायर। सो ये आप इसको सॉल्व करेंगे, सो आपको वैल्यू ऑफ डी मिल जाएगा यहाँ से, दैट इज 17.67। थोड़ा सा ज़्यादा है पहले से, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद लास्ट जो आपको कौन सी थ्योरी थी, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्टेट एनर्जी थ्योरी। स्टेट एनर्जी थ्योरी में द मटेरियल विल फैल ड्यू टू द स्टेट एनर्जी entrapped or developed inside the material, उसकी वजह से मटेरियल फैल होता है। द एंड रिलेशन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, सो दैट इज द सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा वाई पी का स्क्वायर, जो मैंने देखा अभी लास्ट क्लास में देखा था, या पिछली क्लास जो भी उसमें देखा था। सो ये रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। अब इसमें सारी वैल्यू आप रख दो जो आपने अभी निकाली है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 की म्यू की वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया था, दैट इज 0.3, उसकी वैल्यू भी रखेंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ डी 17.6 mm। सो आपने तीनों थ्योरीज लगाई, आपको आंसर लगभग एक जैसे ही मिलता है, ठीक है, बट स्टिल दिस थ्योरीज ऑफ फेल्यूर आर इन एग्जिस्टेंस। अब डिपेंड ऑन द मटेरियल, उसके हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। सो ये न्यूमेरिकल से, अब ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं या आएंगे आने वाले समय में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अब जो ए सेक्शन वाले उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो दे कैन आस्क द क्वेश्चन, देन फिर मैं थोड़ा सा और पढ़ा दूंगा अबाउट द कॉलम एंड स्टड। चलो ए सेक्शन वाले भैया, अब बी सेक्शन वाले भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है सर। हाँ एक में सर ये फर्स्ट क्वेश्चन में सिग्मा डब्ल्यू जहाँ निकला था फॉर्मूले में, सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू 225/3 किया था सर। तो वह यहाँ फॉर्मूला तो ये है ना, सिग्मा वाई, हाँ ये सर, हाँ सिग्मा सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू आपने लिखा है 225/3, हाँ मतलब कि सिग्मा वाई अपॉन एफ ओ एस, हाँ वही तो किया है। वेक्टर ऑफ सेफ्टी। पर फॉर्मूला तो ये है ना कि सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ओ एस। ये कब बता देंगे? बहुत टाइम पहले। नहीं नहीं, मैंने मैंने ऐसा तो नहीं किया, मैंने ये बताया था ना, सिग्मा जो डब्ल्यू जो आपको निकालना है ये वाला, ये होता है सिग्मा वाई पी इसलिए बोल रहा हूँ कि ईट पॉइंट कन्फ्यूजन ना हो वो वाले वाई से, अपॉन एफ ओ एस, यही तो बोला मैं, यही होता है। और इसके पीछे लॉजिक भी है, मैं तो लॉजिक समझाता हूँ ताकि तुमको याद रहो। देखो ये यील्ड पॉइंट स्ट्रेस स्ट्रेस है जो मटेरियल में डेवलप होगी, और वही यील्ड पॉइंट स्ट्रेस जो होती है वो मटेरियल की यील्ड पॉइंट स्ट्रेंथ हो जाती है, ठीक है, दोनों की यूनिट सेम होती है। तो यील्ड पॉइंट स्ट्रेंथ आपने निकाली यूटीएम मशीन से, ये मिल गई, और ये हर मतलब उस मटेरियल की सेम रहेगी अगर सेम कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर किसी उसकी 200 मेगा पास्कल है यील्ड पॉइंट स्ट्रेंथ किसी मटेरियल की, तो ये वो उतना ही रहेगी, ये सिग्मा वाई पी, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मैंने फिर बताया था, फिर से बता देता हूँ। वी आर टेकिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी before कब? fabricating or before producing a material, when we don't know, when we have uncertainty about the uses of the material, कहाँ हम इसको यूज कर रहे हैं या वहाँ की वर्किंग कंडीशंस क्या होगी, when we have uncertainty about the loading conditions, कि हमने 2 के लिए डिजाइन किया 3 आदमी बैठ गया, तो उस समय पर हम वी आर यूजिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। व्हेन वी आर अनसर्टेन अबाउट द मटेरियल स्ट्रक्चर इटसेल्फ, कि मटेरियल के अंदर पहले से जब उसको बनाया था उस टाइम कोई वाइट तो नहीं है, कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं घुस गई उसके अंदर, एट ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी वी आर यूजिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या मतलब है कि हमने इतनी सेफ्टी ले ली है
अगर सेम उससे बता दूंगा यील्ड पॉइंट पे ही डिजाइन कर दिया ना, इसमें डिजाइन कर दूंगा, तो मटेरियल क्या होगा, किसी वो फेल हो जाएगा जब ज़्यादा लोड पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, इसको कम करके बनाया। अब हमने क्या किया, हमारी डिज़ाइन बनी, हमने इसको डिवाइड कर दिया 200 को, मान लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है, 4 है, तो ये कम हो जाएगा कितना, 50 मेगा पास्कल। तो हमने डिज़ाइन करी 50 मेगा पास्कल के साथ, ठीक है। तो अब जब तुमने सारी डिजाइन 50 के ही, तो तुमको पहले से पता होगा भैया 50 से ज़्यादा लोड लिख दोगे तुम मैनुअल में, इससे ज़्यादा लोड नहीं लेना भाई। अब अगर गलती से उसने 50 की जगह 100 भी ले लिया तब भी मटेरियल सेफ रहेगा, लेकिन हमने लिख दिया उसमें, अगर गलती से हो भी गया तो टूट नहीं जाएगा, समझ रहे हो बात। बट एक्चुअल हमने कितने में डिजाइन करी है, हमको कितना पता है, वो 200 तक जा सकता जा सकता है ना, 200 तक है। जा सकता है, लेकिन हमने उसको बता दिया मैनुअल में पहले लिख के, नहीं भाई इससे ज्यादा ना हो पाएगा, ठीक है, तो उससे ज्यादा आपको यस। नहीं करना। तो दैट इज द पॉइंट, इसलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। चलो ठीक है, अभी याद हो गया, और बोलो चलो। बस तुम बहुत समझदार हो यार तुम लोग, डाउट ही नहीं आता तुमको। ठीक है, प्लीज कीप प्रैक्टिस। मैं इसमें जो भी थोड़ा बहुत गलती है वो मैं इस बार, और वो जो भी देखा था वो करेक्ट करके अभी तुम्हारे उसमें पोस्ट कर देता हूँ। और मिड से वो सॉरी परसों अपने उसके लिए यूनिट टेस्ट के लिए तैयार रहिए, फिर मैं थर्ड का भी लूँगा और ये जो फोर्थ का इसका भी लूँगा। सो बी प्रिपेयर्ड, सिंपल है, ज़्यादा बड़े बड़े हैं नहीं। सो अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कॉलम एंड स्टेट। आपने सब जगह कहीं ना कहीं जितना भी घर बनता है जिसको तुम पिलर बोलते हो वो कॉलम कहलाता है, ठीक है। तो आपके घर में जितने भी ये जो ऐसे ये आपके जो वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एनी स्ट्रक्चर, वो सारे के सारे कॉलम है, ठीक है। ये चीज़ की है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल जो भी स्ट्रक्चर है तुम्हारे घर में वो सारी की सारी बीम है। तो बीम तो तुम पढ़ चुके हो, अब आया तुम्हारा कॉलम। कॉलम और स्ट्रट। स्ट्रट की विशेषता वो है, स्ट्रट वो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो तुम्हारे बाइक में लगा हो, चाहे कहीं भी लगा हो, चाहे स्ट्रक्चर में लगा हो, चाहे मशीन में लगा हो, विच इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड। मतलब स्ट्रट तभी कहलाएगा, कॉलम भी तभी कहलाएगा जब वो कंप्रेसिव लोड हो। ये कहाँ गया मेरा पेन, ठीक है रुको, पेन से समझाता हूँ। कॉलम कैसे होते हैं ना भाई, मान लो ये है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये तो कॉलम हो गया, लेकिन कॉलम की लंबाई थोड़ी बड़ी होती है और ये हमेशा कंप्रेसिव लोड लगेगा इसमें, हमेशा। देखो सिविल और मैकेनिकल की विशेषता ये है कि बेचारे सिविल का जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं ना वो कंप्रेशन में होते हैं। वो घर बनाएंगे तो कंप्रेशन में, बिल्ड उसकी क्या बोलते हैं ब्रिज बनाएंगे तो दे ऑलवेज देयर स्ट्रक्चर और दे आर इन कंप्रेशन। एंड मैकेनिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, मोस्टली दे ऑल आर इन टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ, ऑलवेज बोथ आर इन एग्जिस्टेंस। तो ये अंतर होता है, इसलिए सिविल की सारी डिजाइन कंप्रेशन के हिसाब से डिजाइन होती है। अब मैकेनिकल की भैया देखना पड़ता है कि वहाँ क्या लग रहा है, कंप्रेशन या टेंशन या दोनों। सो चलो ठीक है, अब पहुंच गए हम कॉलम। ये कॉलम हो गया, ये स्टट भी हो सकता है, ठीक है। पर स्टट की विशेषता ये है कि ये कंप्रेसिव लोड तो लगना चाहिए, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी साइज छोटी होती है। ये वर्टिकल भी हो सकते हैं, ये ऐसे छोटे से हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, और ये इंक्लाइन भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो ये होते हैं स्टट, इनकी लेंथ होती है, हाँ ये देखो ऐसे, ये इंक्लाइंड भी हो सकते हैं, लेकिन इनके हमेशा कंप्रेशन लोड लगेगा, ये चीज याद रखना। टेंशन नहीं लगाना, टेंशन लग जाएगा तो स्टट नहीं कहलाएगा। तो लोड ऑलवेज एक्टिंग कंप्रेसिव लोड जिसमें एक्ट करे, और दे में भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड, वो स्टट कहलाते हैं। कॉलम जो होते हैं जिसको पिलर आप बोलते हो लोकल लैंग्वेज में, वो हमेशा उनकी वर्टिकल साइज होता है। ज़्यादा होती है, और वो लोग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमेशा उसमें भी कंप्रेशन होता है, इसमें भी कंप्रेशन होता है। तो बिल्डिंग का पूरा लोड किस में रहता है,
इन्हीं कॉलम्स में रहता है, इसीलिए बोलते हैं कॉलम्स कि में हाँ, तो कॉलम जो बनाया जाता है थोड़ा नीचे गड्ढा करके, डिपेंड करता है कितनी बड़ी बिल्डिंग है, उसके भी अलग अलग, वो सिविल वालों को पता है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। बेस बनाते तो हैं उस बेसिक, हिसाब से। हाँ बेसिक यही है, कॉलम एंड स्टार। और आप अब ध्यान से देखो, हर जगह कहीं ना कहीं, अब बाइक में देखना, साइड में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इतनी छोटे रॉड जोड़ दी जाती है, जैसे आपकी चेसी है ना, यूं लाइक दिस, तो ऐसे एक इंक्लाइन यस सर, रॉड, तो वही फ्रेम स्टड है। फ्रेम हाँ, होता है उसमें, फ्रेम, फ्रेम मान लो कि ब्लैक मेन, कलर का। अब मैं तुमको समझाता हूँ, मान लो मेन फ्रेम एक ऊपर चला गया जहाँ सीट लगना है, ये एक बॉडी हम्म। स्ट्रक्चर इधर आया और इधर चला जाएगा स्विंग आर्म जहाँ लगता है, तो अगर मान इसको हम्म। सपोर्ट देने के लिए मैंने यहाँ एक ये स्ट्रक्चर जोड़ दिया, तो यही है स्टड, ठीक है। यस सर। तो ये छोटे होते यस सर। हैं और ये कंप्रेशन में भी रहते हैं, यहाँ जोड़ दिया तो ये भी स्टड हो गया, ये लो, आई समझ में। तो ये तुम्हारी बाइक सीट यहाँ, और यहाँ तुमने, हाँ स्टड तुम्हारा वो भी है जो सॉकअप के अंदर रहता है, देखा है तुमने, डैम्पर, हाँ सर, यस सर। हाँ वो भी स्टड है, वो छोटा सा दिखाता है, चमकता रहता है, वो छोटू वाला, हम्म। वो भी स्टड का एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो वो स्टड कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका छोटा सा कॉलम एंड स्टड। कॉलम एंड स्टड छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है, हमको बेसिकली उसमें क्या पढ़ाना है, मेरे को, आपको पढ़ाना है, मेरे को पढ़ाना है यूलर थ्योरम। यूलर्स थे एक, उन्होंने कुछ यस अजम्पशंस, सर। उन्होंने कुछ अजम्पशंस लिया, और अजम्पशंस लेके चार उन्होंने कंडीशंस डेवलप करी है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा। तो यूलर ने पहला जो कुछ अजम्पशंस लिए हैं, अजम्पशंस क्या लेते हैं, बिल्कुल इनिशियली जो आपका कॉलम हो स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, वो होमोजीनियस मटेरियल का बना होना चाहिए, उसमें जो लोड हो एक्सेल होना चाहिए, है ना, उसमें उसका क्या बोलते हैं, यंग मॉडल जो भी है वो होमोजीनियस मटेरियल का हो तो हो गई। तो इस टाइप से कुछ उनके अजम्पशंस हैं, तो वो अजम्पशंस हमको याद रखने हैं। और चार कंडीशंस हैं, वो कंडीशन में अभी ब्रीफली मैं फिर से पढ़ाऊंगा, आप घबराओ नहीं। चार उनकी कंडीशंस हैं। पहली है, अगर ये मान लो लाइन डायग्राम से बता रहा हूँ कि ये एक कॉलम है, इस डायरेक्शन यहाँ फिक्स कर दिया है और यहाँ पिन कर दिया है, तो ये एक कंडीशन यहाँ से बनती है। दूसरी कंडीशन, दूसरा कॉलम है, ये फिक्स कर दिया है और इधर भी फिक्स कर दिया है, तो ये कहलाता है फिक्स फिक्स, ये कहलाता है फिक्स पिन। फिक्स पिन और हिंज भी बोलते हैं, पिन को हिंज भी बोलते हैं, ठीक है। जो और एक और कंडीशन हो जाएगी, दोनों साइड पिन कर दो, इधर दोनों साइड हिंज कर यस सर। दो। और एक कंडीशन हो जाएगी, इधर फिक्स कर दो और एक साइड फ्री रख दो। अरे यार कैसे बना, ऐसा वाला, यूँ इसको फिक्स कर दो और इसके वाले को फ्री कर दो, तो ये भी कहलाता है। अब ये वो जो क्या बोलते हैं, देखा होगा पोल गड़ा रहता है, वो पोल हाँ डांस सर, वाला, पोल डांस है ना, और वो कुछ वो चढ़ते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, पहलवानी करते हैं तो वैसे, मुझे मलखम याद, बोलते हैं सर हाँ शायद। मलखम बोलते हैं, वेरी गुड, मलखम वाला, वो वाला कॉलम, वो वाला, वो भी एक कॉलम है जिसमें ऊपर फ्री रहता है और नीचे ऐसा रहता है, उसमें लोग तो चढ़ते भी हैं, है ना। तो यस सर। ये यही चार पढ़ने हैं अपने को, अब कुछ नहीं है इनमें, तो बहुत ही सिंपल है। एक एक समझ में आ गया, चारों के चारों अपने आप, उससे तुम उसको गुणा भाग करके निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया। यस सर। अब करेंगे तो आज सब दोनों यूनिट तुम लोगों का बराबर हो गया, चलो ठीक है। अब बताना, बी प्रिपेयर प्लीज़, बी प्रिपेयर, और मैं आज मैसेज डाल देता हूँ और ये वाली स्लाइड भी डाल देता हूँ तुम्हारे ग्रुप में, ठीक है। यस सर। इसके लिए आप प्रिपेयर रहना, अटेंडेंस तुमने डाल ही दी होगी जिसके लिए इतनी देर से आया हो ना। तुम लोग कुछ कर रहे हो सर क्या, वो थोड़ा सा, अलग से कुछ काम कर रहे हो क्या, कुछ नहीं कोई सर कुछ प्रोजेक्ट वोजेक्ट पे नहीं काम कर रहे हो, चल रहा है सर। नहीं सर अभी तो सर। करो। हम्म? क्योंकि अभी एक विश्वकर्मा अवार्ड में जा रहे हैं हमारे सीनियर, अब देखना कुछ होगा तो बताना तुम लोगों को, कुछ करना होगा। चलो वो अलग से बताना, यस सर। यहाँ पर मैं बता अलग से बताना, चलो ठीक है ना, ओके बाय। यस।